Imran, am I audible? Assalamualaikum, sir. You are audible. Assalamualaikum. Walaikum assalam. Am I audible? Yes, sir, you are audible. Imran sir, please switch off the mics of all participants. Imran sir, Sir. Switch off the mics of participants. Okay, sir. Sir, I have allowed participants to mute themselves, so all the participants are requested to mute themselves because there is a huge list. It will take a lot of time, so I will still try. Imran sir, your voice is not clear. So I think now all the participants have switched off their mic. Okay, sir. Please acknowledge. Is it audible now? Yes, there is some noise in your voice. I don't know why. Okay, sir. I'm trying some setting. Hello. Yes, it is. Yeah, it is clear now. Okay, sir. I have switched the mic. Okay. Can you see my screen? Yes, sir. I can see you. Okay. So let's begin our session. I'm thankful to Mr. Imran Abbasi from IBA Community College, Khairpur, for effort shop on Google Classroom, how to use Google Classroom. I am Dr. Mudassir Latif Memon, Vice Principal Technical from IBA Community College, Nowshera Feroz. And we have initiated e-learning for our all community colleges and schools on the directions of the director, IBA Community College, colleges and schools. So I request Mr. Imran Sir to please begin the session. Okay, sir. Thank you very much, sir. Sir, still 40 participants have joined. So I'm taking a few participants. Yes, please record. Yes, please record the session. We will share the participant afterwards. Okay, sir. It's on the recording. So we will start within 3 minutes. I'm checking few guests who must join this session. Okay. Then shortly we will start, inshallah. Okay, you can share your screen. Mr. Imran sir, you can share your screen now. Okay, sir. All the participants are suggested to switch off their video, turn off their video, except few teachers. Mohsen? I'll request all participants to please mute their mics so Mr. Imran can deliver his lecture. Thank you.
The participant can turn off their videos as well. Dr. Mudassir Saab, should we start the session? Please, Mr. Imran sir, we may begin our session now. Okay, sir. Okay, sir. Thank So you. all the participants are requested to mute their voice, please. Okay, we will start our session with the recitation of Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. There is no any limitation or boundary of the medium of the language. We can use any Sindhi, Urdu, or English language because there must be few Urdu teachers as well. So I will prefer Urdu language. मौजूदा सूरत हाल जो कि दुनिया भर में इस वक्त हम सफ़र कर रहे हैं, उसमें अगर हम एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन ऑलमोस्ट 100% शिफ्ट हो चुकी है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो ऐसे सिचुएशन में एक टीचर के लिए लाजमी है कि उसको इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसको हम आईसीटी कहते हैं, कि वो टीचर आईसीटी के टूल्स को यूटिलाइज करे और उसको यूटिलाइज करते हुए अपने स्टूडेंट्स के साथ टीचिंग और लर्निंग के प्रोसेस को कंटिन्यू रख सके। तो इसी हवाले से आज जिस आईसीटी के टूल को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज गूगल क्लासरूम थ्रू जूम एप्लीकेशन। Okay. So you can see on screen, I have shared with you. Yes, sir, we can see. Google Classroom. Okay, सबसे पहले हम थोड़ा डिफरेंस देखते हैं Google Classroom में एंड Zoom में, कि Zoom क्लाउड मीटिंग की एंड्रॉयड वर्जन पर एप्लीकेशन भी अवेलेबल है और विंडोज वर्जन पर अगर कोई यूज करना चाहे तो सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल है। लेकिन जब हम बात करते हैं गूगल क्लासरूम की, तो एंड्रॉयड पर तो गूगल क्लासरूम की एप्लीकेशन अवेलेबल है जिसको हम इंस्टॉल करके स्टोर से यूज कर सकते हैं। लेकिन विंडोज के प्लेटफॉर्म पर गूगल क्लासरूम की कोई एप्लीकेशन नहीं है, सॉफ्टवेयर नहीं है कोई। तो गूगल क्लासरूम अगर कोई विंडोज वर्जन यानी कि डेस्कटॉप कंप्यूटर या फिर लैपटॉप पर यूज करना चाहे तो वो इंटरनेट ब्राउजर पर classroom.google.com टाइप करके उसको एक्सेस कर सकता है। ओके, गूगल क्लासरूम असल में है क्या? ये एक फ्री वेब सर्विस है जिसमें सिंपली हम क्रिएट कर सकते हैं मैनी थिंग वी कैन डिस्ट्रीब्यूट विद द स्टूडेंट्स एंड ग्रेडिंग और असाइनमेंट्स हम शेयर कर सकते हैं पेपरलेस वे में without using any single paper. Primary purpose of Google Classroom is streaming the process of sharing the files between teachers and students. Okay, जब हम बात करते हैं Google Classroom की Android वर्जन पर, प्लेटफॉर्म पर, तो जब आप Google Classroom की एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं तो जो फ्रंट पेज आता है वो कुछ इस तरह का लुक आपको नजर आता है। अगर आपने क्लास क्रिएट कर ली है तो हम अभी देखेंगे कि क्लास किस तरह क्रिएट की जाती है, क्लास के कोड किस तरह शेयर किए जाते हैं, और इसके अलावा हम कितने डिफरेंट वे से स्टूडेंट्स को असाइनमेंट यानी कि टास्क असाइन कर सकते हैं। और उनको जब हमने टास्क असाइन कर दिया तो स्टूडेंट्स हमें वापस अपना सबमिट करते हैं टास्क, फिर हम मार्किंग किस तरह करते हैं और फिर उनको रिटर्न किस तरह करते हैं। ये कुछ मेन फीचर्स होंगे जो कि हम आज इस प्राइमरी सेशन में डिस्कस करेंगे। तो ये जो फर्स्ट इंटरफेस हमारे पास नजर आता है गूगल क्लासरूम में, ऑल द पार्टिसिपेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू टर्न ऑफ देयर माइक्स प्लीज। ओके, तो
जब हमने गूगल क्लासरूम की ओपन करते हैं एप्लीकेशन, तो यहाँ पर हमें एक यहाँ पर प्लस की साइन नजर आती है। एक्सक्यूज मी, ओके। यहाँ देखिए ये एक प्लस की साइन नजर आती है, इसके जरिए हम क्लास को क्रिएट करते हैं या फिर ज्वाइन करते हैं। और यहाँ पर जो ऑप्शन है इसमें हमें कुछ और ऑप्शंस क्लास वगैरह हमें नजर आते हैं। ओके, तो जब हम इन 3 लाइंस को क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें इस तरह के ऑप्शंस नजर आते हैं। आपका अकाउंट नजर आता है, जिस अकाउंट से आप लॉगिन हो रहे हैं। आपको क्लासेस नजर आती हैं कि कौन कौन सी क्लास आपने क्रिएट की हैं। और कैलेंडर में हम बाद में डिस्कस करेंगे। नोटिफिकेशंस आपके पास आती हैं, जितने भी आपने टास्क असाइन किए हैं और वो सारे आपको नोटिफिकेशन नजर आते हैं। या फिर अगर आप सेक्शन हेड हैं और आप ऑब्जर्व कर रहे हैं बाकी टीचर्स को, तो जितने भी टीचर्स अपनी क्लासेस को कोई भी टास्क असाइन करेंगे तो ये आपके पास यहाँ नोटिफिकेशन में नजर आएगा। इसके अलावा जितनी क्लासेस आपके पास हैं नीचे आपको नजर आएंगी। यहाँ पर जैसे मैंने ये कुछ क्लास अपनी क्रिएट की है और बीइंग सेक्शन हेड इन सारी क्लासेस में मैं लॉगिन हूँ, तो वो क्लासेस भी मेरे पास यहाँ नजर आ रही हैं। ओके, इसके अलावा नोटिफिकेशन जो हमने देखा अभी बोर्ड, इसमें हमें इस तरह की नोटिफिकेशन नजर आती हैं। जितने भी स्टूडेंट्स आपका असाइन किया हुआ टास्क रिटर्न करते हैं या कमेंट करते हैं, कुछ इस तरह का लुक आपके पास नजर आता है। और यहाँ पर नोटिफिकेशन में इसको क्लिक करके आप ऑल नोटिफिकेशन भी रीड कर सकते हैं, या फिर वो नोटिफिकेशन जो कि अभी तक अनरीड है वो भी आप देख सकते हैं। ओके, हम आगे चलते हैं। यहाँ पर अभी हम स्टार्ट करते हैं क्लास किस तरह क्रिएट की जाती है। तो ये जो फ्रंट पेज है, मेन पेज है, यहाँ पर जब आप प्लस की साइन को क्लिक करते हैं तो यहाँ पर 2 ऑप्शंस आते हैं, एक ज्वाइन क्लास एंड क्रिएट क्लास। हम सबसे पहले ज्वाइन करते हैं, क्रिएट करते हैं क्लास को। अभी आपने क्लिक करेंगे क्रिएट क्लास को तो आपके पास इस तरह की एक कुछ टेक्स्ट आएगा, इसको आप कंटिन्यू कर देंगे यहाँ से। और नेक्स्ट जो आपके पास पेज आएगा कुछ इस तरह का होगा। यहाँ पर आप क्लास नेम लिख सकते हैं। लेट सपोज मैंने लिखा है क्लास 8 सेक्शन ए या फिर बी, या फिर दोनों क्लास आप अगर कोई एक टीचर दोनों सेक्शन को पढ़ा रहा है तो सेक्शन A/B भी लिख सकते हैं। यहाँ रूम की नीड नहीं है। सब्जेक्ट आप यहाँ पर लिख सकते हैं, साइंस, मैथ, एनी सब्जेक्ट यू कैन राइट। और उसके बाद आप क्लिक करेंगे क्रिएट को। तो क्रिएट जैसे आप क्लिक करेंगे तो प्रोसेस होगा और उसके बाद आपकी क्लास क्रिएट हो जाएगी। ओके, तो ये वही फ्रंट पेज है। अब यहाँ पर आपके पास 3 ऑप्शंस नजर आते हैं। ओके, जब आपने क्लास क्रिएट कर दी, अब ये जो ऑप्शन है आप कर्सर को देख सकते हैं। इस ऑप्शन को जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये विंडो नजर आएगी। अब इसमें क्लास की सेटिंग अवेलेबल है। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, टाइटल चेंज करना चाहें, डिस्क्रिप्शन, सेक्शन, रूम, सब्जेक्ट। और अगर आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर जनरल के कुछ ऑप्शंस आएंगे। जनरल में है क्लास कोड। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस ऑफ गूगल क्लासरूम। जैसे ही आपने क्लास क्रिएट की, आप यहाँ पर सेटिंग में आएंगे और ये क्लास कोड नोट करके अपने प्रिंसिपल्स को या सेक्शन हेड्स को जो इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उनको आप शेयर कर देंगे। ये क्लास कोड जैसे आप शेयर करेंगे तो हमारी प्रैक्टिस जो रही वो ये थी कि हमने एक ग्रुप बनाया IBA कम्युनिटी कॉलेज खैरपुर में। हमने एक टीचर्स का ग्रुप बनाया जिसमें इंस्ट्रक्शन हमें दी गई कि आप अपनी क्लास क्रिएट करके अपना जो कोड है हर क्लास का वो शेयर करें। अच्छा, हर क्लास का डिफरेंट कोड होगा। तो हमारे टीचर्स ने क्लास क्रिएट की, उसके बाद
ये कोड हमारे साथ शेयर किया और वो कोड हमने पेरेंट्स को थ्रू फेसबुक अकाउंट हमने उनसे शेयर किया। तो उसमें डिफिकल्टी यही है कि उसमें काफ़ी पेरेंट्स को डिफिकल्टी हो रही थी कोड्स को फाइंड आउट करने में, सर्च आउट करने में। तो फिर हमने उसका सोल्यूशन ये निकाला कि हमने जितने भी कोड्स थे उनको एक टेबल की फॉर्म में कन्वर्ट किया। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन दिस वन IBA कम्युनिटी कॉलेज खैरपुर एक की भी। अब ये एक सेक्शन क्या है, सिर्फ कॉलेज सेशन की कोड्स हैं गूगल क्लासरूम के। तो यहाँ पर हमने एक टेबल जनरेट की जिसमें वर्टिकल हमने सब्जेक्ट्स लिखे और हॉरिजॉन्टली क्लासेस मेंशन कर दी यहाँ पर। और यहाँ पर हमने सब्जेक्ट्स के कोड्स जो कि टीचर्स ने हमारे साथ शेयर किए थे वो हमने यहाँ पर राइट लिखकर और हमने ये PDF फाइल में कन्वर्ट करके या डिफरेंट रिसोर्सेज से हमने पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर दिए। अच्छा, हम वापस आते हैं अपने गूगल क्लासरूम में। ओके, तो ये जो सेटिंग है इसमें आपने ये कोड नोट करना है और अपने सेक्शन के साथ शेयर करना है। नीचे एक ऑप्शन है स्ट्रीम सेटिंग और क्लास वर्क ऑन स्ट्रीम, इसको हम बात करते हैं। ओके, समटाइम ऐसा होता है कि जो आपने कोड क्रिएट किया है वो कोड फंक्शनिंग नहीं होता, मे बी एनी रीजन। तो आप इसको रीसेट क्लास कोड भी कर सकते हैं और अगर डिसेबल करना चाहें तो डिसेबल भी कर सकते हैं कि कोड की जरूरत ना पड़े, कोई भी स्टूडेंट आके क्लास को आकर ज्वाइन कर सकता है। तो आप रीसेट भी कर सकते हैं। ओके, ये जो फ्रंट पेज पर आपके पास 3 ऑप्शन नजर आ रहे हैं, स्ट्रीम, क्लास वर्क एंड पीपल, अगर आप एंड्रॉइड वर्जन यूज कर रहे हैं। तो मैं थोड़ा क्विकली आपको इनका थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूं कि इनका फंक्शन क्या है। स्ट्रीम के 2 तरह से हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। नंबर 1 कि आप सिर्फ कोई भी अनाउंसमेंट करना चाहें वो यहाँ स्ट्रीम पर कर सकते हैं। जैसे ये शेयर विथ योर क्लास, ये स्ट्रीम का पेज है, तो यहाँ आप क्लिक करेंगे। अब मैं इसको लाइव डेमो भी आपको दिखाऊंगा अभी। तो स्ट्रीम में आप कुछ भी यहाँ अनाउंसमेंट लिखकर आप स्टूडेंट के साथ शेयर कर सकते हैं। कोई पोस्ट आपने अनाउंसमेंट कर दी। क्लास वर्क में आप कोई भी टास्क असाइन करेंगे और पीपल में आपने जितने भी स्टूडेंट्स आपको ज्वाइन किया है वो सारे स्टूडेंट्स आपको पास स्क्रीन पर नजर आएंगे। ओके, तो फर्स्ट पर्पज स्ट्रीम का ये है कि आप डिस्कशन, नॉर्मल डिस्कशन, कोई अनाउंसमेंट है, कोई प्लानिंग आप कर रहे हैं स्टूडेंट के साथ, वो शेयर कर सकते हैं कि हम आज क्लास स्टार्ट करेंगे, कल करेंगे, क्या टॉपिक हमारा होगा, वो आप स्ट्रीम पर लिखकर आप शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा इसका पर्पज ये है कि जो क्लास वर्क में अपने जो भी चीज असाइन करेंगे, टास्क, वो असाइनमेंट हो, क्विज हो या कोई टेस्ट हो, तो वो भी आपको स्ट्रीम के पेज पर नजर आएगा। ओके, अब ये स्ट्रीम पर मैंने एक टेक्स्ट लिखा है, वेलकम डियर स्टूडेंट्स, वी विल स्टार्ट आवर लर्निंग प्रोसेस फ्रॉम टुमारो डेटेड XYZ, टुडे वी विल प्लान आवर एम एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो ये मैंने स्ट्रीम का जो पेज था, आई मीन टू से दिस, मैंने यहाँ पर शेयर योर विथ योर क्लास, यहाँ पर ये टेक्स्ट टाइप किया और ये टेक्स्ट मैंने शेयर कर दिया यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर आप अटैचमेंट में भी कुछ चीज ऐड कर सकते हैं। अगर आप क्लिक करेंगे अटैचमेंट को तो आपके पास ये ऑप्शंस नजर आएंगे। आप कोई लिंक शेयर करना चाहें अनाउंसमेंट की, फाइल को ऐड करना चाहें, कोई फोटो ऐड करना चाहें, रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। अच्छा, आप इसमें अपना मैसेज, वीडियो मैसेज भी रिकॉर्ड करके अपने स्टूडेंट के साथ शेयर कर सकते हैं। तो जब आप रिकॉर्ड वीडियो को क्लिक करेंगे तो आपके पास विंडो आएगी, आप उसको रिकॉर्ड करके आप शेयर कर सकते हैं। ओके, न्यू PDF फाइल भी आप बना सकते हैं। उस PDF फाइल में भी एनीथिंग यू कैन राइट एंड यू कैन शेयर विद द स्टूडेंट्स। ओके, जब आपने कोई भी मैसेज लिखकर इस आइकन को क्लिक किया तो ये आपके स्क्रीन पर स्ट्रीम के पेज पर ये आपके पास पोस्ट हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स कैन सी योर पोस्ट एंड अनाउंसमेंट व्हाटएवर यू हैव डन। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स कमेंट भी कर सकते हैं, आप खुद भी इस पर और कमेंट भी कर सकते हैं, एनीथिंग यू कैन डू। ओके, अब हम चलते हैं क्लास वर्क पर। तो यहाँ तक मैं अगर थोड़ा क्विकली रिव्यू करूँ तो यहाँ तक जो इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये थी कि आप
अपनी क्लासेस को, कोर्स को पेरेंट्स के साथ किस तरह अटैच करते हैं। तो जब आप क्लास क्रिएट करेंगे, आपने कोड नोट करके अपने सेक्शन हेड्स को या प्रिंसिपल्स को शेयर करेंगे। और ये जो मैंने फॉर्मेट आपको अभी शो किया, आई विल शेयर विथ यू एज वेल, या अगर आप भी जनरेट करना चाहें तो इट्स ओके। तो इसमें आप कोड लिखकर आप पेरेंट्स के साथ इजीली शेयर कर सकते हैं। अच्छा, जब आपने शेयर की तो स्टूडेंट्स सिर्फ ज्वाइन करेंगे क्लास को, उसमें सिर्फ कोड लिखेंगे और आपके स्क्रीन पर वो ऐड हो जाएंगे। ओके, हम आते हैं अभी क्लास वर्क पर। मैंने क्लास वर्क को क्लिक किया तो यहाँ पर ब्लैंक आ रहा है। अभी तक मैंने कोई क्लास का टास्क असाइन नहीं किया। यू हैवंट क्रिएटेड एनी क्लास वर्क येट। वही क्लास है क्लास 8 जो मैंने अभी क्रिएट की थी। अब यहाँ पर जब आप प्लस की साइन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास कुछ ऑप्शंस आएंगे, असाइनमेंट, क्वेश्चन, मटेरियल एंड टॉपिक एंड रीयूज द पोस्ट। रीयूज पोस्ट का मतलब है आपने कोई और पोस्ट पहले क्रिएट की हुई है और वही यूज, फॉर एग्जांपल क्लास मैट्रिक ए और मैट्रिक बी, मैट्रिक ए को आपने एक टास्क असाइन किया है, वही आप मैट्रिक बी को असाइन करना चाहते हैं तो दोबारा टाइप करने की जरूरत नहीं। आप इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो वही कुछ आपको नजर आएगी और आप यहाँ शेयर कर सकते हैं। ओके, अब मैं असाइनमेंट शेयर कर रहा हूँ स्टूडेंट के साथ। तो आप क्लिक करेंगे असाइनमेंट को तो आपके पास इस तरह का एक व्यू नजर आएगा। यहाँ पर क्लास वही 8A, टाइटल और डिस्क्रिप्शन, यहाँ दो ऑप्शंस हैं। व्हाट आई सजेस्ट कि आप टाइटल में लिखेंगे कुछ इस तरह, असाइनमेंट नंबर 1, और डिस्क्रिप्शन में आप वो लिखें जो कि आप स्टूडेंट से चाहते हैं कि व्हाट दे हैव टू डू। आप यहाँ भी लिख सकते हैं टाइटल में, लेकिन बेहतर ये होगा कि असाइनमेंट नंबर लिखें यहाँ पर। उसकी वजह ये है कि आपको पता होगा कि अब तक हमने कितने टास्क असाइन कर चुके हैं स्टूडेंट्स को। जब स्टूडेंट के पास स्क्रीन पर ये चीज जाएगी तो वहां पर सिर्फ असाइनमेंट नंबर 1 नजर आएगा। जब वो क्लिक करेंगे तो फिर डिस्क्रिप्शन में नजर आएगा कि हमें इस असाइनमेंट में व्हाट वी आर असाइंड। और सिमिलरली जब आप टीचर्स अपना प्रोफाइल जब रिव्यू करते हैं तो वहां आपको पता चलता है कि असाइनमेंट नंबर 1, 2, 3 कितनी असाइनमेंट हम दे चुके हैं और कौन सी डेट पर दे चुके हैं। जब आप उनको क्लिक करेंगे तो फिर आपको डिस्क्रिप्शन नजर आएगा। ओके, तो मैंने टाइटल में लिखा असाइनमेंट 1, डिस्क्रिप्शन लिखा कि मेक समराइज नोट्स ऑफ टॉपिक 16 अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। अब यहाँ पर आप पॉइंट्स कितने भी देना चाहें, जब आप पॉइंट को क्लिक करेंगे यहाँ पर तो आप यू कैन एंटर एनी नंबर ऑफ पॉइंट्स एंड देन सेव। उसके बाद यहाँ ड्यू डेट को क्लिक करेंगे और फिर टाइम को भी क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा। आप डेट यहाँ से एंटर करेंगे, उसके बाद टाइम एंटर करेंगे और ओके कर देंगे। और ओके करने के बाद वापस जा रहा हूँ। ओके करने के बाद ये सारा डेटा फिल हो गया और आप इस आइकन को क्लिक करेंगे तो आपने जो असाइनमेंट असाइनमेंट आपने जो दी है वो स्टूडेंट के साथ शेयर हो जाएगी। So this was the simple process how we assign the topic. Okay. अब यहाँ पर कुछ टीचर्स की क्लास में से आपको मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि स्टूडेंट के पास किस तरह नजर आता है। तो ये टीचर है हमारे सर शरफुद्दीन, इनकी क्लास में मैं एज ए स्टूडेंट लॉग इन हूँ बीइंग अ सेकंड। तो यहाँ पर ये स्टूडेंट्स व्यू है, जो टीचर ने शेयर किया है वो सारा चीज यहाँ सब चीज नजर आ रही है। स्टूडेंट ने कमेंट भी किया है और ये मटेरियल कुछ सर ने शेयर किया है और इस तरह की और बहुत सारी चीजें नजर आती हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर कमेंट भी कर सकते हैं। ओके, अब ये एक टॉपिक सर ने असाइन किया है, व्हाट वाज द 3rd जून प्लान। इसको जब क्लिक करते हैं तो स्टूडेंट्स किस तरह रिस्पॉन्स करेंगे। तो जब स्टूडेंट टॉपिक को क्लिक करते हैं तो यहाँ पर अपना आंसर लिख सकते हैं। देन दे कैन, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हैंड इन का ऑप्शन आ रहा है, तो जो भी आंसर होगा वो टाइप करके हैंड इन कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर एड प्राइवेटली कमेंट भी स्टूडेंट्स कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि किसी को नजर ना आए बाकी स्टूडेंट्स को, तो स्टूडेंट्स यहाँ एड प्राइवेट कमेंट में भी अपना आंसर लिखकर टीचर को सबमिट कर सकते हैं। जब स्टूडेंट्स सबमिट करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का व्यू नजर आएगा।
आपने टास्क असाइन किया, आपने शेयर किया, स्टूडेंट ने वो टास्क कंप्लीट करके आपको वापस किया रिटर्न के ऑप्शन के जरिए से, और फिर आपके पास जो नजर आएगा, ये काफी स्टूडेंट्स हैं मेरी क्लास में, इनमें 2 स्टूडेंट्स ने ये टास्क किया और 3 स्टूडेंट्स ने नहीं किया। तो जो स्टूडेंट ने टास्क कंप्लीट करेंगे आपके पास यहाँ नजर आएंगे और आप उनको मार्क असाइन करेंगे कि कितने मार्क्स इनके होने चाहिए। आप उसको क्लिक करेंगे तो आपके पास वो वर्क नजर आएगा, जिस तरह भी उन्होंने शेयर किया होगा आप उनको मार्क्स असाइन करेंगे और फिर रिटर्न वर्क कर देंगे। तो जो स्टूडेंट टास्क किया आपके साथ शेयर कर दिया, आपने उसको चेक किया फिर वापस कर दिया, तो देन स्टूडेंट्स कैन आल्सो सी। ओके, तो यहाँ पर 2 ऑप्शन है, इंस्ट्रक्शन और स्टूडेंट वर्क। स्टूडेंट वर्क में तो स्टूडेंट के नाम और उनका टास्क नजर आ रहा है, और जब आप इंस्ट्रक्शन को क्लिक करते हैं तो ये चीज नजर आती है जो मैंने पहले कहा था कि अगर आप असाइनमेंट में क्वेश्चन लिख देंगे तो एप्रोप्रिएट नहीं होगा। आप असाइनमेंट नंबर 1 लिखें और डिस्क्रिप्शन में लिखें इंस्ट्रक्शन, वो इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ नजर आएगा। ओके, अच्छा ये व्यू है स्टूडेंट का जो टास्क उसने किया है, और ये रिटर्न करेगा और वापस आपके साथ शेयर कर देगा। ओके, दिस इज द व्यू इंस्ट्रक्शन का। जो आपने इंस्ट्रक्शन शेयर की थी असाइनमेंट नंबर 1, और जो चीज स्टूडेंट ने करना है वो यहाँ पर नजर आएगा। ओके, मैं थोड़ा वापस जा रहा हूँ। ओके, यहाँ पर जो क्लास वर्क में हमने असाइनमेंट स्टूडेंट को शेयर की थी, यहाँ पर एक और ऑप्शन था क्वेश्चन का। तो अगर आप क्वेश्चन देना चाहें तो लेट्स सी व्हाट इज देयर। तो क्वेश्चन में मैंने लिखा है इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन बी सॉल्व ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इंस्ट्रक्शन ऑप्शनल है, आप देना चाहें अप टू यू। मैंने इनको लिखा है कि गिव योर आंसर थ्रू वीडियो मैसेज, और मैंने पॉइंट्स असाइन कर दिए और इनके साथ शेयर कर दिया। तो अब स्टूडेंट के पास जब मेरा क्वेश्चन जाएगा, ये टास्क जाएगा, तो वो वीडियो रिकॉर्ड करेगा ऑप्शंस में और आपके साथ शेयर कर देगा। अच्छा, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगर मैं इनको कहूँ कि वीडियो मैसेज के जरिए नहीं, बल्कि मैं यही क्वेश्चन एमसीक्यू में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर शॉर्ट आंसर को जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपको व्यू नजर आएगा। आप यहाँ पर सॉरी शॉर्ट आंसर में और एमसीक्यू 2 ऑप्शन यहाँ पर आएंगे। तो एमसीक्यू में आप के पास 4 ऑप्शंस, जितने भी ऑप्शन ऐड करना चाहें आप ऐड करेंगे और स्टूडेंट के साथ शेयर कर देंगे। तो अब यही क्वेश्चन इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन बी सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपने 4 ऑप्शन दे दिए, यही क्वेश्चन एमसीक्यू में कन्वर्ट हो गया। अब वो एमसीक्यू को टिक करेंगे और आपके साथ शेयर कर देंगे, देन यू कैन चेक योर आंसर। ओके, ये क्लास वर्क मैंने एक असाइनमेंट दी है इस वक्त अब तक, और एक क्वेश्चन उनको दिया है मैंने। ओके, अब हम डायरेक्टली अच्छा यहाँ तक मेन फीचर्स थे हमने उन पर डिस्कस की एंड्रॉयड वर्जन पर। अब हम कुछ डायरेक्टली चलते हैं। ओके, यहाँ पर मैं एक और थोड़ी सी ऐड कर दूं बात कि हमारी प्रैक्टिस क्या रही IBA कम्युनिटी कॉलेज खैरपुर में। उसमें एक तो ये था कि हमने कोर्स जिस तरह जनरेट किए, टीचर्स ने हमारे साथ शेयर की और हमने पेरेंट्स के साथ शेयर कर दी इस टेबल के थ्रू। डिफरेंट सेक्शन के हमने कोर्स लेकर शेयर कर दिए। उसके अलावा हम वीकली बेस पर रिपोर्ट कलेक्ट करते हैं। जब हम कॉलेज में होते तो पेपर के फॉर्म में कलेक्ट करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सीन डिफरेंट है। तो हमने क्या किया कि एक हमने प्रोफॉर्मा क्रिएट किया, इसमें कॉलेज वीकली रिपोर्ट, गूगल क्लासरूम, डेट, फर्स्ट वीक या फर्स्ट 2 वीक जो भी आपने डेट इंसर्ट करेंगे यहाँ पर, नेम ऑफ द टीचर, क्लास आप लिखें यहाँ पर, सब्जेक्ट पॉसिबल है कि एक टीचर डिफरेंट सब्जेक्ट भी पढ़ा सकता है। अच्छा, ये इम्पोर्टेंट है कि आपके पास क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं। लेट्स सपोज क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, तो लाजमी नहीं है कि गूगल क्लासरूम भी 30 स्टूडेंट ने ही ज्वाइन किया हो।
तो आप लिखें क्लास में लेट्स सपोज 30 स्टूडेंट्स थे, नेक्स्ट सेल में है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड इन गूगल क्लासरूम, मैट्रिक बी में और सी में चले कलेक्टिवली 50 स्टूडेंट्स हैं। तो गूगल क्लासरूम में कितने स्टूडेंट ने ज्वाइन किया है, लेट्स सपोज दे में बी 30 एनी नंबर। उसके बाद नंबर ऑफ टास्क असाइंड, एक टीचर ने एक हफ्ते में कितने टास्क असाइन किए। वो टास्क असाइनमेंट भी हो सकता है, क्विज भी हो सकता है, टेस्ट भी हो सकता है, डिस्कशन भी हो सकता है, आपने कोई वीडियो भी शेयर की हो सकती है, कुछ हैंडआउट्स भी दिए होंगे आपने पढ़ने के लिए सिर्फ। तो ये सारी चीजें मिलाकर इनको हम कहते हैं टास्क, कितने टास्क आपने असाइन किए। लेट्स सपोज मैंने एक हफ्ते में 8 टास्क असाइन किए, ओके। इसी तरह दूसरी क्लास में अगर 30 स्टूडेंट्स हैं तो क्लास में ज्वाइन किया है 10 स्टूडेंट ने और मैंने टास्क असाइन किए हैं 6। अब यहां पर अगर आप देखें तो ये इंस्ट्रक्शन है नंबर ऑफ स्टूडेंट कंप्लीटेड या सबमिटेड टास्क एंड टास्क। आपने इस मैट्रिक बी क्लास में तो 8 टास्क असाइन किए, लेकिन इन 8 टास्क में से कितने स्टूडेंट्स ने इस टास्क को कंप्लीट किया। आपके पास लॉगिन है 30 कैंडिडेट्स स्टूडेंट्स, और कितने स्टूडेंट ने असाइन ये सबमिट किया आपको, आप वो यहाँ पर लिख देंगे। लेट्स सपोज 30 में से 20 ने सबमिट किया और 10 ने नहीं किया, और ये 10 स्टूडेंट्स थे और मैंने 6 टास्क असाइन किए थे। उन 6 में से जो फर्स्ट टास्क मैंने दिया था वो कितने स्टूडेंट ने कंप्लीट किया। लेट्स सपोज 10 में से 9 ने कंप्लीट किया, एक नहीं कर सका। जो अपने सेकंड टास्क दिया था आउट ऑफ 8 वो कितने स्टूडेंट कंप्लीट किया, और ये। तो इसी तरह ये डिफरेंट टास्क हैं, आप ये रिपोर्ट फिल करते हैं। तो हमारी प्रैक्टिस ये रही कि हमारे टीचर्स इस तरह का kindly switch off the mic please, we are very short time, we will wind up this, thank you। तो ये प्रोफॉर्मा टीचर्स फिल करते हैं और शेयर करते हैं ग्रुप पर, और फिर हम कंपाइल करके सेक्शन वाइज हायर अथॉरिटीज को शेयर करते हैं, सबमिट करते हैं, और आगे ये सारा प्रोसेस होता है। अच्छा, यहाँ एनी अदर कमेंट आप लिखना चाहें कि anything you observed during 1 week of your Google Classroom, you can write here as well. So I will share you this proforma as well. Okay, अब हम देखते हैं कि डायरेक्ट, अच्छा, विंडोज के प्लेटफॉर्म पर इसका आउटलुक किस तरह नजर आता है। यहाँ कुछ ऑप्शन एडिशनल भी हैं जो कि एंड्रॉयड वर्जन पर नहीं है। तो यहाँ पर आप ब्राउजर में लिखेंगे classroom.google.com। अगर आप एंड्रॉयड में यूज नहीं करना चाहें, डेस्कटॉप पे यूज करना चाहें, तो आप ब्राउजर में ये वेबसाइट लिखेंगे और इसको एंटर जब करेंगे तो डायरेक्टली आपके पास ये जो है। अच्छा, एक और बात कि हमारे पास जो प्रैक्टिस रही वो ये कि हमने पहले IBA की जो एक्सटेंशन की ईमेल एड्रेस थी टीचर्स के पास, उसके जरिए हमने इसको लॉगिन करने की कोशिश की, तो उसमें एरर आ रहा था। तो हमारे सारे टीचर्स ने जीमेल के अकाउंट क्रिएट किए और जीमेल के अकाउंट के थ्रू लॉगिन किया। तो जो टीचर्स न्यू हैं इसमें, तो उनको भी सजेशन है यही कि जीमेल का अकाउंट वो क्रिएट करें, उसके थ्रू ये असेस होगा। ओके, तो जब आप गूगल क्लासरूम विंडोज वर्जन पर ओपन करते हैं तो फ्रंट पेज आपके पास इस तरह का नजर आता है। जितने भी आपने क्लास क्रिएट किए हैं या फिर बीइंग अ सेक्शन हेड आपने जितनी क्लास में ज्वाइन किया है फॉर ऑब्जर्वेशन और कमेंट्स और सजेशंस, तो वो सारी क्लास आपको यहाँ नजर आएंगी। वही ऑप्शंस हैं यहाँ पर जो कि एंड्रॉइड वर्जन में थी, क्लासेस, कैलेंडर, टू डू, आपको क्या क्या करना है अभी, क्लासेस एंड मेनी मोर। और इसके अलावा यहाँ पर प्लस का ऑप्शन है, देखते हैं यहाँ क्या है। अच्छा, यहाँ पर प्लस में ज्वाइन एंड क्रिएट क्लास, तो हमने क्रिएट क्लास पहले भी की है, तो लेट्स सी व्हाट्स इन ज्वाइन क्लास। तो ज्वाइन करने में स्टूडेंट सिर्फ कोड लिखेंगे और आपके पास ज्वाइन हो जाएंगे, नथिंग एल्स।
अच्छा, मैं यहाँ पर अब एक क्लास ओपन करता हूँ जो कि मैंने अभी क्लास बनाई थी। तो जो मैंने एंड्रॉयड वर्जन पर टास्क असाइन किए थे वही नज़र आ रहे हैं। अब हम यहाँ पर क्लास वर्क में जाते हैं। मैंने क्लास वर्क को क्लिक किया तो ये व्यू नज़र आ रहा है। यहाँ पर आप क्रिएट करते हैं। अब यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ पर एक एडिशनल ऑप्शन भी हमें नज़र आ रहा है, असाइनमेंट, क्वेश्चन, मटेरियल, रीयूज पोस्ट एंड टॉपिक। ये तो सारे एंड्रॉयड वर्जन में भी अवेलेबल थे। डॉक्टर मुदस्सिर साहब, आर यू अवेलेबल देयर? डॉक्टर मुदस्सिर साहब? I think, sir, he has left the meeting. ओके सर, ओके। सो क्लास वर्क में जब आप क्रिएट करते हैं या डेस्कटॉप वर्जन में, विंडोज वर्जन में, तो यहाँ पर एक एडिशनल ऑप्शन आ रहा है, क्विज असाइनमेंट। क्वेश्चन में तो आपने सिंपल क्वेश्चन लिखा और अच्छा, इसमें फर्क ये है कि असाइनमेंट या क्वेश्चन जो आप स्टूडेंट को असाइन करेंगे, जब वो कंप्लीट करके आपसे शेयर करेंगे तो बाकी स्टूडेंट्स भी उसको देख सकते हैं, उसमें प्राइवेसी नहीं है। लेकिन जब आप कोई असाइनमेंट शेयर करते हैं स्टूडेंट्स के साथ और जब वो वापस करते हैं, आपको रिटर्न करते हैं, तो क्विज असाइनमेंट नो वन कैन सी, इट विल बी द प्राइवेट कमेंट। तो इसमें फर्क है। अच्छा, हम देखते हैं क्विज असाइनमेंट में क्या है। अब यहाँ पर कुछ एडिशनल ऑप्शंस हैं, ये आप डिटेल में ऑफलाइन होकर इसको एक्सेस करेंगे, इसको चेक करेंगे कितने ऑप्शंस हैं। आई एम गिविंग यू एन ओवरव्यू ओनली। तो यहाँ पर क्रिएट में, क्विज असाइनमेंट में आपने टाइटल लिखा, इंस्ट्रक्शन लिखी, कोई फाइल ऐड करना चाहें तो फाइल ऐड करना चाहें, लिंक ऐड करना चाहें, गूगल ड्राइव से कोई आप चीज़ शेयर करना चाहें, यू कैन डू इट। और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट ऑप्शन जो कि आई वुड लाइक टू शेयर, आप असाइनमेंट दे रहे हो, क्विज दे रहे हो या क्वेश्चन दे रहे हो, आई थिंक सब में ही अटैचमेंट का ऑप्शन आएगा। उसमें अगर आप YouTube से कोई चीज़ उनको शेयर करना चाहें, सजेशन देना चाहें, तो आप वो भी कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप पहले YouTube में से वीडियो को डाउनलोड करें अपने कंप्यूटर में या लैपटॉप में या एंड्रॉयड मोबाइल में, फिर आप उनको अटैच करें। आप डायरेक्टली YouTube को क्लिक करें, यू कैन सी दिस व्यू, और यहाँ पर आपने कोई भी टॉपिक लिखा, लेट्स सपोज HCF एंड LCM, आप एंटर करेंगे तो ये सारे वीडियोस आएंगे। और लेट्स सपोज मैं फर्स्ट वीडियो यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ, यहाँ वीडियो ऐड हो गई। आपने कोई भी टाइटल लिखेंगे, उसके बाद आप करेंगे लेट्स सपोज LCM इंस्ट्रक्शन, वॉच वीडियो एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स एटसेट्रा, एनीथिंग यू कैन डू। और फिर आप असाइन कर देंगे। यहाँ पर राइट कॉर्नर पर असाइन का ऑप्शन है। इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शन है, आप इनको ऑफलाइन डिटेल में देख सकते हैं। असाइन करेंगे तो ये असाइन हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर मेनी ऑप्शंस आप इनको चेक कर सकते हैं। तो ये जो क्विज का ऑप्शन है ये प्राइवेट होगा, बाकी स्टूडेंट्स इसको अप्रोच नहीं कर पाएंगे। ये मैंने असाइन कर दिया। ओके, सो पीपल में देखते हैं, जितने भी स्टूडेंट्स आपके पास ऐड होंगे वो सब यहाँ नजर आएंगे। और मार्क्स में भी काफी, जो आपने टास्क असाइन किया, स्टूडेंट ने रिटर्न किया, आपने चेक करके वापस कर दिया, 10 स्टूडेंट्स, तो 10 स्टूडेंट का डेटा आपको यहाँ पर नजर आएगा कि किस क्वेश्चन पे कितने मार्क्स स्टूडेंट ने दिए हैं, और बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर होंगे। ओके, अभी हम इसको वाइंड अप करते हैं। लास्ट few points to share with you, then you can ask any difficulty or question. What I suggest कि Google Classroom को easily और जल्दी किस तरह समझा जाए, इनके ऑप्शंस को आप लोग ने क्लास क्रिएट किए, कोड जनरेट किए, पेरेंट्स और स्टूडेंट से शेयर करने से पहले एक स्टेप आपको करना चाहिए, और वो ये है
क्योंकि हमारे साथ जो डिफिकल्टी हुई वो ये हुई कि हमने कोड क्रिएट किए और पेरेंट के साथ शेयर कर दिए। उसमें एक ट्रबल शूटिंग ये आई कि काफ़ी कोड्स फंक्शनिंग नहीं थे, तो हमने इसको रीजेनरेट किया और इसमें थोड़ा टाइम हमें लग गया। तो बेहतर ये है, क्योंकि फर्स्ट टाइम वी वर अनअवेयर ऑफ दिस थिंग, तो बेहतर ये होगा कि जब किसी कॉलेज के टीचर्स ये स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपने कोड जनरेट करने के बाद पेरेंट्स से शेयर नहीं करना है, बल्कि लेट सपोज अगर केमिस्ट्री के 4 टीचर्स हैं, वो आपस में हैं, मैंने एक क्लास क्रिएट की, दूसरे टीचर ने उसको ज्वाइन करके चेक किया कि कोड फंक्शनिंग है या नहीं है। इस तरह डिफिकल्टी नहीं होगी। आप इस तरह एक ही सब्जेक्ट के 5 टीचर्स एक दूसरे की क्लासेस को ज्वाइन करके देखें, और फिर एक टीचर एक तरह से ट्रायल वर्जन होगा ये। टीचर मैंने एक टास्क असाइन किया, आपने उसको देखा कि किस तरह ये लुक आता है, आप किस तरह रिटर्न करते हैं। आप वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए भी कर सकते हैं। उसको आप देखें कि किस तरह टास्क असाइन होता है, वापस किस तरह होता है, और इस तरह एक इफेक्टिव वे होगा गूगल क्लासरूम को समझने का। अगर आप ये भी नहीं कर सकते, मतलब ये ऑप्शन ना हो, तो आप घर में फैमिली मेंबर्स के साथ भी मोर देन 1 मोबाइल डिवाइसेस होते हैं, अवेलेबल होते हैं अक्सर। आप फैमिली मेंबर्स को ज्वाइन करवाएं और उसके थ्रू आप इजीली समझ सकते हैं। 2 डिवाइस सामने होंगे, इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड गूगल क्लासरूम, देन यू कैन फर्दर प्रोसेस। सो बेसिक लेवल पर हम आज इतना ही डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट टाइम इफ पॉसिबल वी विल सी सम मोर ऑप्शंस। उसका मैं हाईलाइट अब दे रहा हूँ कि हम इसमें और क्या कर सकते हैं, देन वी विल डिस्कस लेटर ऑन। आप गूगल क्लासरूम के जरिए भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। वो हम नेक्स्ट लेट्स अगर कोई चांस मिला तो हम नेक्स्ट में इसको डिस्कस करेंगे। तो आज तक इतना ही। इफ यू हैव एनी क्वेरी और कोई ऑप्शन क्लियर ना हो तो यू कैन आस्क, और ये जो प्रेजेंटेशन थी पीपीटी वो भी मैं आपसे शेयर कर लूंगा और बाकी डेटा भी आपसे शेयर कर लूंगा। थैंक यू। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क, आई एम अवेलेबल। Hello. Okay, if we do not have any question, then yes, तो जीमेल आईडीज ऐड नहीं हो रही। मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ। जी जी। कुछ जीमेल। नाज़ा लाड़िक है। हाँ, मैं नाज़ा लाड़िक हूँ, लाड़काना से। मैं IBA पब्लिक स्कूल लाड़काना में पढ़ाती हूँ। हाँ, मेरा सवाल है कि कुछ जीमेल्स आईडीज ऐड नहीं हो रही। आईडीज सुन रहे हैं आप? जी जी। कुछ जीमेल्स जो है ना वो आईडीज ऐड नहीं हो रही। ओके। आईडीज नहीं ऐड हो रही तो क्या करें? जीमेल का अकाउंट अब तक हमने जितने भी बनाए हैं वो जीमेल के अकाउंट सारे ही इसमें अप्रोच कर रहे हैं। आप थोड़ी डिटेल अगर बताएं कि क्या किस आप थोड़ी डिटेल अगर बताएं कि किस तरह के इशू आ रहा है तो उसको मैं और आपको सॉल्व कर सकता हूँ। वीडियो मैसेजेस। हेलो मिस नाजिया नालिक, मैं मिस्टर इमरान। Excuse me, Mr. Imran, can you hear me? Yes, I can hear you. Okay, I want to ask one question. How can we display our code on the main screen, main page? Okay. Permanently, so it should be displayed full time on our main screen. ये डिस्प्ले परमानेंटली नहीं होता स्क्रीन पर। जब आपने क्लास को क्लिक किया तो ये आप स्क्रीन देख सकते हैं आप पीपीटी फाइल में। इसी स्क्रीन पे पूछ रही हूँ कि जो ग्रीन एरिया है उसमें जहाँ क्लास शो हो रही है और कोड भी शो हो। नहीं, यहाँ कोड शो नहीं होता। आपको यहाँ सेटिंग में ये जो आइकन है सेटिंग का, यहाँ पर जाना पड़ेगा, वहां पर आपको कोड नजर आएगा और यहाँ नजर नहीं आता। सर सुन रहे हैं आप मुझे? जी जी।
Excuse me, Miss Chanel Khalid, is it clear to you? Yes, yeah, sir. Yeah. अच्छा यहाँ सर इमरान जी बाकी रहा सर ओके जी हेलो जी सर मेरा क्वेश्चन ये है कि असल में अगर YouTube चैनल जैसे ऑफिशियल स्कूल्स बना रहे हैं सक्कर IB पब्लिक स्कूल सक्कर जी तो YouTube चैनल पे अगर कोई हम वीडियो लेक्चर की बनाकर अपलोड करें तो WhatsApp ग्रुप में स्टूडेंट्स के साथ आपका क्वेश्चन क्लियर थोड़ा रिपीट करें प्लीज मैं कह रहा हूँ कि अगर हम कोई लेक्चर पे ऐड करें अपना ना वीडियो लेक्चर और उसको हम ऑफिशियल YouTube चैनल स्कूल वाले के ऊपर अपलोड कर दें ओके तो वो लिंक शेयर करें हम स्टूडेंट के साथ अपने ग्रुप में क्या ये इफेक्टिव वे होगा या नहीं? बिल्कुल होगा मैं आपको अभी इसका डेमो दिखाता हूँ जी सर ये क्लास 8A इसमें स्ट्रीम के पेज पर ही मैं रिपीट करता हूँ इसको स्ट्रीम के पेज पर शेयर समथिंग विथ योर क्लास अगर आप यहाँ पर भी करना चाहें तो कर सकते हैं क्लास वर्क में भी करना चाहें वहां भी कर सकते हैं तो मैं को एक ऑप्शन दिखाता हूँ शेयर समथिंग विथ योर क्लास आपने क्लिक किया और यहाँ पर आपने कुछ इंस्ट्रक्शन लिख दी कि वॉच वीडियो शेयर्ड इन द लिंक आप यहाँ पर एड का ऑप्शन आ रहा है एड को क्लिक करें यहाँ पर भी लिंक को क्लिक करें लिंक यहाँ पर लिखें पेस्ट करें लेट सपोज मैं एक ये कॉपी की मैंने लिंक और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दी एड लिंक कर दी तो यहाँ पर एक लिंक आ रही है आपने ये पोस्ट कर दी तो आप YouTube की कोई भी लिंक पेस्ट करना चाहें आप शेयर कर सकते हैं आई होप दैट्स इट Excuse me, Mr. Imran. जी मैडम Just like Zoom, can we do the meeting within a Google as well? Yes, we can except do. the assignments. Yes, we can do. इसमें हम फोटो शेयर कर सकते हैं वीडियो शेयर कर सकते हैं लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग भी कर सकते हैं वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट कभी मीटिंग में रखेंगे लेकिन आपको मैं ओवरव्यू सिर्फ दे रहा हूँ अगर आप देखना चाहें तो उसको कर सकते हैं यहाँ पर जब आप Can we share the screen as well? स्क्रीन शेयरिंग का आई थिंक ऑप्शन इसमें नहीं है लेकिन आप वीडियो कॉल कर सकते हैं आई मीन टू से कॉन्फ्रेंस कॉल कर सकते हैं यहाँ पर जब आप सेटिंग में आते हैं यहाँ कैलेंडर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कैलेंडर को जब आप क्लिक करते हैं तो ये कैलेंडर व्यू आपको नजर आ रहा है अच्छा ये कैलेंडर गूगल कैलेंडर है ये इंस्टॉल करना पड़ता है और ये राइट साइड पर अच्छा ये जब कैलेंडर आपको पास नजर आया तो यहाँ क्लिक सॉरी मैं अपनी क्लास में जा रहा हूँ एक मिनट टैक्सी एंड क्लास वर्क ओके जो आपने क्लास क्रिएट की है उसमें क्लास वर्क में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ गूगल कैलेंडर का ऑप्शन नजर आएगा आपको गूगल कैलेंडर को जब आप क्लिक करेंगे तो ये कैलेंडर नजर आएगा आपने जितने भी जिस दिन पर भी जो भी टास्क असाइन किया होगा ये इस कैलेंडर में आपको सब नजर आएगा लेट सपोज कल के दिन में 21 की डेट में मैं एक वीडियो कॉन्फ्रेंस अरेंज करना चाहता हूँ तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आएगा आप टाइटल लिखें यहाँ बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पर एक ऑप्शन है कॉन्फ्रेंसिंग का यू कैन सी एड लोकेशन कॉन्फ्रेंस को जब क्लिक करते हैं तो फिर यहाँ पर एक एप्लीकेशन हमें इंस्टॉल करनी होगी जिसका नाम है हैंग आउट्स ये भी गूगल की एप्लीकेशन है उसके जरिए फिर हम वीडियो कॉल कॉन्फ्रेंस अरेंज कर सकते हैं जो कि इस वक्त इंस्टॉल नहीं है यहाँ पर वी विल डिस्कस नेक्स्ट टाइम तो और ऑप्शन इसके जरिए आप वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं मतलब स्टूडेंट्स के पास नोटिफिकेशन चला जाएगा बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ हमें ईमेल करनी पड़ेगी नहीं ये जिस तरह आप टास्क असाइन कर रहे हैं इसी तरह से ही वीडियो कॉन्फ्रेंस का नोटिफिकेशन उनके पास आएगा वो ज्वाइन कर लेंगे इसमें जी थैंक यू अस्सलाम वालेकुम sir I would request you to share some features of Zoom too as I have been using Zoom so I'm not if
if you can share some features of Zoom, then it will be beneficial for me because I'm using Zoom. I think, yes, I will share with you, surely. Okay. Thank you, sir. Okay, Mr. Imran, would you like to share this recording, link of this recording, so whenever we want to see the stream? Zoom Yes, of meeting. course. It's in our planning that at the end of meeting, I will share this video through authorities toward you. Okay. Any question, please? Okay, during the use of this application, if you feel any problem, how can we contact you? Let me answer this query. We have created WhatsApp group, and we are assigning each WhatsApp group a computer faculty member who will be addressing your queries. In addition, the computer teachers from your colleges are also part of our e-learning team. So in case of any query, you may also contact them. Thank you. Am I clear? Yeah, yes, sir. Thank you very much, sir. Please share your email address to all. If they have any query, they will ask you. Yes, sure. I will be posting here, and I will be circulating the email address in the WhatsApp group. That's fine. Okay. So we are thankful to Mr. Imran, and we are thankful to all faculty members who have spared their time and joined this session, informative session by Mr. Muhammad Imran Abbasi. So we encourage the efforts all our faculty members are putting to improve our e-learning system to facilitate our students in this difficult time of COVID-19. So I'm really thankful on behalf of Directorate, IBA Community Colleges and Schools, and I request all faculty members to encourage their students also. We know that we all have some type of problems like internet connectivity or other issues. So, but we do not have to stop our effort. We have to make some contribution to improve our e-learning system. And the most important thing which I want to highlight here is the ICT component is very important nowadays. Like after this situation, when this COVID-19 situation will end, we will realize that most of our education system or learning resources will go online. Up to 50% or maybe 25% portion of our courses will go all online. So it is humble request to all our faculty members to improve their online skills. Our team of volunteers from all our colleges. I'll request Ms. Najia Sompo to please mute your mic. Excuse me, Sir Imran. Excuse me, Sir Imran, are you listening me? Yes. Please, let Sir Mudassir talk first, then we can answer you. Sir Mudassir is saying something. Madam, please. Excuse me, Sir Mudassir Saab is saying something. Let him complete, please, first. Shikil, my video in audio item. Sir Imran, can you mute all the mic? Yes, sir, I have done. Let me unmute you first. Yes. Am I audible now? Yes, sir. Yes, sir. You can say. So all your queries will be addressed in your WhatsApp group, and the dedicated team members, the volunteer dedicated team members from all our community colleges are supporting us. And I will request, like I was saying, that the most important thing which we have to do is to improve our ICT skills. So beside our expertise of the subject knowledge, this condition or afterwards will require us the ICT skills which include Zoom, Google Classroom,
and WhatsApp or social media communication. So I am really thankful to our host, Mr. Imran Abbasi, and all the faculty members for their participation. And I encourage all our faculty members to please improve their ICT skills and be active on social media, WhatsApp, and like I will also request you all to encourage your students to increase the use of online tools like Zoom and WhatsApp and Facebook. So we are in process of creating our online website for all our community colleges and schools. We have already created WhatsApp group with respect to each subject. We are allocating a dedicated IT team member to support you guys in the WhatsApp group. And we have volunteers like Mr. Imran who usually conduct the informative sessions on online tools. So hopefully the next session will be on Zoom. So we will be sharing the time and meeting link to all the participants in the WhatsApp group. So again, I'm thankful to all the faculty members on behalf of Directorate, IBA Community Colleges and Schools for your dedication in this hard time of COVID-19, and I really appreciate your efforts, your support towards your students. Thank you very much. The recording of this session will be provided. The link of the recording will be provided in our WhatsApp group. Thank you.